خبر دیں گے آپ کو، گوادر میں پاک بحریہ کا ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں لئیق الرحمان سے جانتے ہیں۔ لئیق آگاہ کیجیے گا۔ جی، ترجمان پاک بحریہ کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ پاک بحریہ کا ہیلی کاپٹر گوادر میں تربیتی پرواز کے دوران حادثے کا شکار ہوا ہے۔ ہیلی کاپٹر دوران پرواز ممکنہ طور پر فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا۔ حادثے کے نتیجے میں پاک بحریہ کے 2 افسران اور ایک جوان نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ پاک بحریہ کی جانب سے اس حادثے کی تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، جس کی تصدیق کی ہے ترجمان پاک بحریہ نے کہ اس حادثے کی وجوہات کا اندازہ لگانے کے بعد ایک حتمی رپورٹ نیول ہیڈ کوارٹرز کو پیش کی جائے گی۔ جی، فنی خرابی کے باعث طیارہ حادثے کا شکار ہوا۔ لئیق آگاہ کر رہے تھے آپ، شکریہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز لاہی کو اٹک جیل سے بازیاب کرانے کا حکم دے دیا۔ کل پیش کرنے کی ہدایت۔ آئی جی اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ جسٹس امجد رفیق نے کہا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اٹک بطور بیلف کل جیل سے پرویز لاہی کو بازیاب کروائیں۔ اس کیس میں توہین عدالت اور محکمانہ کارروائی ہوگی۔ پولیس افسران پر فرد جرم عائد کروں گا۔ عدالت کی طلبی پر آئی جی پنجاب عثمان انور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ اور بھارتی وفد اس وقت چیئرمین پی سی بی زکا اشرف کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک ڈیلیگیشن پاکستان بھی ہے کیونکہ پاکستان ہوسٹ کر رہا۔ پرسوں ہم شری لنکا میں تھے، کینڈی میں تھے، وہاں بھی ہم گئے تھے، اور آج یہ ڈیلیگیشن یہاں پہ جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے انویٹیشن پر ہم لوگ یہاں پہ جس سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہے، اور ہم ایشیا کپ کے جو میچز ہیں اس میں ہم سب لوگ شریک کریں گے اور ان کو دیکھیں گے، ہے نا، اور ایک اچھی جو ہے گڈ ول لے کے یہاں سے جائیں گے۔ اور جگہ اشرف صاحب ہمارے ہیں یہاں پہ، اور ہمارے تعلقات جو ہے کرکٹ کی دنیا میں پرانے تعلقات ہیں، ویسا سے بہت پرانے تعلقات ہیں، وہ انشاءاللہ تعلقات اچھے بنے رہے۔ Good afternoon. My name is Roger Berry from the BCCI, and I'm very pleased to be back in Pakistan. My last visit to Pakistan was in 2005 when we worked with the Pakistan fast bowlers for the Asian Cricket Council, and it's been a very welcome trip. We thank you, sir, for inviting us over, and we are here to come and watch the matches, to watch Pakistan play Afghanistan tomorrow, and a few more games in the future. Thank you very much. Just say a few words. Yes, Jaga sir, please. Jaga sir, you. Sorry. Okay, start. Okay, chalo. This is how the media wants. It's a great moment. I would like to welcome Roger Berry and Rajesh Shukla Sahab to Pakistan. اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے انوائٹ بھی کیا تھا، اور ان کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ادھر آئے اور ہماری دعوت پر ہمارا دل بڑھانے کے لیے ایشیا کپ کی جو شروعات ہیں اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہی بورڈز ممالک کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ ہم نے دعوت دی ہے، انہوں نے مہربانی کی ہے، یہ ہمیں کریں گے تو ہم بھی اسی طرح ان کو گرم جوشی سے استقبال کریں گے، اینڈ انشاءاللہ وی ول گرو ٹوگیدر۔ جی پاکستان انڈیا ریلیشنز ول گرو، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے کرکٹ ریلیشن ول گرو۔ جی ایسا نہیں آپ چاہتے ہیں کیا کوشچن پوچھ رہے ہیں؟ چلو پوچھ لیں۔ جا اینی کوشچن؟ نہیں، پاکستانی فینس کے لیے ہے کہ کرکٹ کا مزہ لو، اتنے اچھے میچ ہو رہے ہیں، میچ کا مزہ لو، کرکٹ انجوائے کرو۔ کرکٹ سے بڑھیا چیز کیا ہے؟ ہماری وزٹ کرکٹ کو لے کے ہے۔ ابھی پہلے ایشیا کپ آپ دیکھ لو، پھر اس کا جواب بھی دیں۔ دے دیں گے۔
भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 3 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा और मीडिया से गुफ्तगू के मौके पर राजीव शुक्ला ने कहा कि पीसीबी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, हम एशिया कप के मैच भी देखेंगे। और सदर बीसीसीआई रॉजर बेनी ने कहा कि पाकिस्तान के दौरे की दावत पर शुक्रगुजार हूं। इसके साथ चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने कहा कि रॉजर बेनी और राजीव शुक्ला को दौरा पाकिस्तान पर वेलकम करते हैं, भारत हमें दावत देगा तो हम भी जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ये वफ्द है जो पाकिस्तान पहुंचा है सदर बीसीसीआई रॉजर बेनी की क़यादत में। और अब बात करेंगे एफबीआर ने शरीफ खानदान, जहांगीर तरीन, चौधरी ज़का अशरफ, हारून अख्तर, मखदूम, उमर, शहरियार समेत तमाम सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात की 38 शुगर मिलों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। फरोख्त और ज़खायर का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए मॉनिटरिंग टीमें भी तैनात कर दी हैं। एफबीआर की टीमें तमाम शुगर मिलों में चीनी के स्टॉक, सेल्स और मिलों से बाहर जाने वाली चीनी का रोजाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड मुरतब करेंगे। शुगर मिलों के अहाते में एफबीआर की मॉनिटरिंग टीमें गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौजूद रहेंगी। रमजान शुगर मिल्स, JDW, अब्दुल्ला शुगर मिल्स, अल अरबिया शुगर मिल्स की चीनी की पैदावार की मॉनिटरिंग के लिए टीम तैनात कर दी गई। अलमुइज इंडस्ट्रीज, अशरफ शुगर मिल्स, चनार शुगर मिल्स, इत्तेहाद शुगर मिल्स, फातिमा शुगर मिल्स, हकबाहू शुगर मिल्स, हंजा शुगर मिल्स, हुसैन शुगर मिल्स, इंडस शुगर मिल्स, जौहराबाद शुगर मिल्स पर भी मॉनिटरिंग टीमें तैनात की गई हैं। जेके शुगर मिल्स, कश्मीर शुगर मिल्स, लैया शुगर मिल्स, मक्का शुगर मिल्स, मोन शुगर मिल्स, पतुक्की शुगर मिल्स, रसूल नवाज शुगर मिल्स, सफीना शुगर मिल्स, 7 स्टार, शाहताज, शकरगंज, शेखू, SW शुगर मिल्स भी शामिल हैं। फैसलाबाद में चंद रोज कबल 100 रुपए में मिलने वाली चीनी 190 रुपए की हो गई है, जिस पर शहरी गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट देखिए। शहर भर की मार्केटों में चीनी की कीमत 190 रुपए फी किलो पर पहुंच गई है। महंगाई के चक्की में पिसे अवाम की जेबों पर मजीद बोझ बढ़ गया है। बहुत ज्यादा चीनी महंगी है, इनको चाहिए जो रेट पहले थे वही रेट कर दें चीनी का। मुझे ये बताएं कि सारे पाकिस्तान को शुगर हो गई है, जो चीनी इन्होंने इतनी महंगी कर दी है कि खानी तो है नहीं, किसी ने महंगी कर दें कोई बात नहीं है। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों की तो चांदी हो गई है। 95 रुपए में खरीदी गई चीनी 190 रुपए में फरोख्त करके दोनों हाथों से अवाम को लूटने में मसरूफ है। इस कौम पे तरस करें। सुना था मैंने कि यार गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया, जिस चीज का एक्शन लेते हैं ये और ऊपर चली जाती है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने अगर मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज ना किया तो आने वाले दिनों में चीनी की कीमत में मजीद इजाफा हो जाएगा। हुकूमत को चीनी माफिया के खिलाफ घेरा तंग करके तेज कार्रवाइयाँ करने की जरूरत है ताकि पहले से महंगाई की चक्की में पिसी अवाम सुख का सांस ले सके। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ मोहम्मद काशिफ, ARY न्यूज, फैसलाबाद। कोयटा में चीनी महंगी होने के बाद एक कप चाय 100 रुपए का हो गया। चाय खानों की रौनक मान पड़ने लगी। रिपोर्ट करेंगी अतिया अकरम। पेट्रोल की ट्रिपल सेंचुरी के बाद चीनी भी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों की जिंदगी से चाय की मिठास भी छीन ली। पहले हम डेली बेसिस पर यहाँ पर 2-3 दफा आते थे, अभी चाय महंगे होने की वजह से तो हम पता नहीं नेक्स्ट अभी पाएंगे या नहीं। मुश्किल हो गया वैसे चाय पीना, और हम लोग चाय के बगैर रह भी नहीं सकते। होटलों पर मिलने वाली चाय के कप में 20 रुपए इजाफा हो गया। चाय का एक कप 100 रुपए का हो गया। कस्टमर थे उनकी अभी रेंज में भी नहीं आ रहा है। हमारी काफी सारे बंदे होते थे, अभी कोई न रश रहता है न कुछ। चीनी की कीमतों में होने वाले इजाफे ने चाय के शौकीन लोगों की जिंदगियों में कड़वाहट घोल दी। 10 दिनों के दौरान चीनी की कीमत में 46 रुपए इजाफे ने शहरियों की चीखें निकाल दी हैं। सारा दिन की थकन उतारने का वाहिद जरिया चाय भी दस्तरस से बाहर हो गई है। कैमरामैन अमीनुल्लाह मेंगल के साथ अतिया अकरम, ARY न्यूज, कोयटा। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों का जिम्मेदार कौन? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने चीनी बरामद करने की जिम्मेदारी नवीद कमर की वजारत पर डाल दी। कहा, चीनी बरामद करने की इजाजत पीपल्स पार्टी के नवीद कमर की वजारत तिजारत ने दी। हमारी एक इत्तेहादी हुकूमत थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर तिजारत नवीद कमर ने चीनी बरामद करने के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। बोले, हमारे पास चीनी की इजाफी मिकदार मौजूद थी, इसलिए एक्सपोर्ट की इजाजत दी। सीसी में इस पे डिस्कशन होता है और काबीना उसको इंडोर्स करती है, तो कोई एक वजारत नहीं ये फैसला करती। मुल्क में जब आपके पास किसी चीज की भी ओवर प्रोडक्शन हो, सरप्लस हो, तो आप उससे ज़र मुबादला कमाते हैं और आप एक्सपोर्ट्स करते हैं। इस केस में जो फिगर्स दिए गए जिसके बेसिस पे ये फैसला हुआ, हमारे पास सरप्लस जो था 3 से 4 गुना ज्यादा था जितनी इजाजत दी गई उससे। फैसला मेरा ख्याल है कि वो दुरुस्त था।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर कहते हैं वजीर तिजारत नवीद कमर ने 2.5 लाख टन चीनी बरामद की इजाजत दी थी। चीनी बरामद करने का मकसद इसहाक डार के जरिए मुबादला हासिल करना था। राना सनाउल्लाह ने 1.4 मिलियन टन चीनी स्मगल करने की इजाजत दी। चीनी की स्मगलिंग से स्मगलर्स ने डॉलर्स कमाए, लेकिन एहसन इकबाल सूरत हाल का जिम्मेदार नवीद कमर को ठहराते हैं। वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिए। भारी भरकम बिजली के बिलों के सताए कराची वालों के लिए बुरी खबर आ गई है। बिजली 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट तक मजीद महंगी करने की दरखास्त जमा करा दी। इजाफा 2022-23 की 3 छमाही एडजस्टमेंट्स की मद में मांगा गया है। कराची के लिए बिजली की कीमत में इजाफे की हुकूमती दरखास्त नेपरा में जमा करा दी गई है। दरखास्त में कहा गया है कि अक्टूबर तक दिसंबर 2022 की छमाही एडजस्टमेंट में 47 पैसे इजाफे की वसूलियां सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2023 में करने दी जाएं। जुलाई तक सितंबर 2022 की छमाही एडजस्टमेंट के तहत 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट वसूली की। ये वसूलियां सितंबर, अक्टूबर 2023 में करने की इजाजत दी जाए। अप्रैल तक जून की छमाही एडजस्टमेंट का इत्तला के इलेक्ट्रिक पर भी किया जाए। अप्रैल तक जून छमाही एडजस्टमेंट का इजाफा 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट तक बनता है। बिजली के भारी बिलों और इजाफी टैक्सों के खिलाफ आज मुल्क के कई शहरों में एहतजाज और हड़ताल की जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में बुकला ने भी अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट किया। और पाकिस्तान की शोबिस शख्सियात भी बिजली के महंगे बिलों से परेशान। निदा यासिर, फजाली, सादिया इमाम और नादिया खान बिजली के बिल देखकर हैरान हो गई हैं। डीजी हेल्थ सिंध ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे और ब्लैक मार्केटिंग का नोटिस लेते हुए चीफ ड्रग इंस्पेक्टर को खत लिख दिया है। अनवर खान से मजीद जानेंगे। अनवर, इस खत से मुतालिक बताइएगा। ये देखें, इस वक्त कराची समेत सिंध के तमाम अजला के अंदर अद्वियात के बुरहान में शिद्दत अख्तियार कर ली है। इस वक्त होलसेल मार्केट के अंदर तमाम की तमाम अद्वियात ब्लैक मार्केट के अंदर फरोख्त की जा रही हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, दिमागी अमराज की अद्वियात समेत दिल के मरीजों की जो अद्वियात है वो इस वक्त दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। डीजी हेल्थ की जानिब से खत लिखा गया है कि आइंदा 48 घंटों के अंदर मुकम्मल तौर पर तमाम रिपोर्ट फराहम की जाए कि इनकी नजला के अंदर अद्वियात मौजूद नहीं है। डीएचओस पुलिस की निगरानी के अंदर कार्रवाई करें और कार्रवाई के बाद अपनी हस्बी रिपोर्ट पेश करें। जबकि निगरान वजीर सेहत साद खालिद ने भी सूरत हाल का नोटिस ले लिया और फौरी तौर पर हिदायत की कि आइंदा 48 घंटे के दौरान सूरत हाल वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएगी। ताहम इस वक्त तमाम की तमाम अद्वियात और बिलखुसूस आशोब चशम की जो ड्रॉप्स है, जो ऑइंटमेंट है, वो इस वक्त मार्केट के अंदर दस्तियाब नहीं है। और ठीक है, तफसीलें आगाह करें। शुक्रिया आपका अनवर। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने मुकदमात की तफसीलात और नामालूम मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमात दर्ज किए गए। नैब, एफआईए और एंटी करप्शन में इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा है। कुछ मुकदमात को जाहिर भी नहीं किया जा रहा। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि तमाम जाहिर और गैर जाहिर मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में यह भी इस्तदा की गई कि बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत दोबारा शुरू हुई तो एफआईए प्रोसिक्यूशन टीम अदालत के रूबरू पेश हुई। पीटीआई लीगल टीम ने ड्यूटी जज की अदालत में जमानतें सुनने के लिए दरख्वास्त वापस ले ली। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनाज जुल्करनैन अहलिया की नासाजी तबीयत के सबब 8 सितंबर तक छुट्टी पर हैं। इससे पहले समाअत में जज राजा जवाद अब्बास हसन ने कहा था वो ड्यूटी जज नहीं है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस है, उनके पास इस अदालत का इख्तियार नहीं। जज का कहना था उनके पास 24 अदालतों का इख्तियार है, लेकिन इनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत शामिल नहीं है। चेयरमैन पीटीआई को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा। वकील नईम हैदर पंजौता कहते हैं एक मुअज़्ज़ज़ जज छुट्टी पर हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने हमारी दरखास्त नहीं सुनी। हम ये समझ रहे थे कि एक दिन की छुट्टी है, वहाँ पर पता चला कि पूरे एक हफ्ते के लिए अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो छुट्टी पर हैं। फेयर ट्रायल जो है वो नहीं दिया जा रहा। बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं उनके ऊपर ये हमला है। 24 अदालतों के एडमिनिस्ट्रेटिव जज जिनके पास हमने आज दरख्वास्त दी कि आज आप ड्यूटी जज हैं और मेहरबानी फरमाकर आप इस केस की समाअत करें, लेकिन हमारी इस्तदाद जो है मंजूर नहीं की गई। अब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू करेंगे और उनसे ये दरख्वास्त करेंगे इस अदालत की कार्रवाई किसी और अदालत में वो कौन जज होंगे जिनको ट्रांसफर आप करें और इस केस के ऊपर समाअत हो। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबर देंगे आपको परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। तफसीलात क्या हैं, हुसैन अहमद चौधरी से जानते हैं। हुसैन बताइए। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत हुई है। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात आयद किए गए थे कि जो 3 MPO का जो ऑर्डर है DC इस्लामाबाद का, उसकी सर्टिफाइड कापी जो है वो जमा नहीं कराई गई थी। साथ उस पर अदालत ने कहा कि इस पर तो एतराज़ है, जिस पर वकील चौधरी परवेज इलाही की जानिब से बताया गया कि हमें एतराज़ का जो है वो नहीं बताया गया। गैर कानूनी हिरासत का ये केस है, इस केस में अर्जेंसी है, लिहाजा इस केस को जल्द सुना जाए। जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने कहा कि आपकी दरख्वास्त पर जो है वो एतराज़ात हैं, एतराज़ात हम दूर कर रहे हैं और अर्जेंसी की पेश नज़र ही कल के लिए इसको मुकर्रर कर रहे हैं। जिसके बाद अदालत ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करके रजिस्ट्रार ऑफिस को जो है वो डायरी नंबर भी लगाने का हुक्म दिया है और केस को कल दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की ठीक है, समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अपडेट कर रहे थे हुसैन, शुक्रिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में निगरान वज़ीर खजाना ने वज़ीर-ए-आज़म को मौजूदा मुल्की मुआशी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत की। और रानीपुर में गद्दी नशीन पीर असद शाह की हवेली में काम करने वाली सिर्फ फातिमा ही नहीं बल्कि मुतअद्दिद बच्चियां तशद्दुद का शिकार हुई। तशद्दुद का शिकार होने वाली मुलाजमा लड़कियों के दिल दहला देने वाले इंकशाफात ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात खड़े कर दिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने मवाज गोट के लोगों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। उन्होंने वजीर दाखिला सिंध से फौरी तौर पर कच्चे और पक्के के इलाके में एक्शन लेने का मुतालबा किया। पेश गोई भी की कि बिलावल जरदारी कभी वजीर आजम नहीं बन सकते। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज।